Bismillahirrahmanirrahim. In our today's lecture, we will discuss about the topic of part 2 second year, that is Coulomb's law, and it is an important no question according to both point of view. Coulomb's law के डिस्कशन से पहले हम कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं. We have the idea of a magnet and it have two poles. First one is the north pole and second one is the south pole, and there exists a magnetic field around the magnet due to which it attract or repel an other object. Further, we have the idea that like poles always repel each other as shown in figure, and unlike poles means opposite poles always attracts each other. Similarly, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, जब भी उसे जमीन से ऊपर की तरफ फेंका जाए तो दोबारा जमीन की तरफ ही वापस आता है, बिकॉज जमीन के अंदर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है. मीन्स मैग्नेट के गिर्द जो फोर्स एग्जिस्ट करती थी वो थी मैग्नेटिक फोर्स. और इसी तरह अगर जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो अर्थ के अराउंड जो फोर्स एग्जिस्ट करती है उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट. So we must have the idea of a charge. Charge is a basic property of a material due to which it attracts or repels an other charge. And we know that there are two types of charges. First one is positive charge and second one is negative charge. Like magnetic poles, opposite charges always attract each other. Opposite charges एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया. तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन है बिटवीन टू चार्जेस, इसे देखने के बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दे अट्रैक्ट और repel each other, and the answer of this question is the electrostatic force due to which the charges attract or repel each other, and the force between these two charges is determined by or found by Charles Coulomb. Charles Coulomb basically a French military engineer, and he performed the experiment in 1785 AD to investigate the quantitative nature of these forces. How much force is exist between the two charges, and after experiment he deduced a law known as Coulomb's law or Coulomb's law of charges.
According to Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between two-point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them. कि जो भी फोर्स होगी दो चार्जेस के दरमियान में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के। इसे एक्सप्लेन करने के लिए लेट्स से वी हैव टू चार्जेस, चार्ज q1 एंड चार्ज q2 that is separated by distance r. Then a force exists between these two charges that can be found by Coulomb's law or that can be determined by Charles Coulomb. So according to statement, the force is directly proportional to the product of magnitude of charges. So force is proportional to Q1 into Q2. That is equation 1. Further, and this force is inversely proportional to the square of distance between them. So we write F is proportional to 1 over r square or F is inversely proportional to r square. R is the distance between two charges. This is the equation number 2. By comparing equation 1 and 2, the formula of force becomes F proportional to Q1 Q2 divided by R square. एंड जब भी हम लोग फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला में से प्रोपोर्शनैलिटी साइन को खत्म करते हैं तो इक्वल टू और कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर वो कांस्टेंट के है जिसे कूलम्स कांस्टेंट बोला जाता है। और इसी कूलम्स कांस्टेंट को अगर हम लोग सेपरेट करें तो के का फॉर्मूला बन जाएगा के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। अगर हम लोग फोर्स देखें तो फोर्स को हम लोग मेजर करते हैं न्यूटन में, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर में। यहाँ डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम एंड सेकंड चार्ज का भी ऐसा ही एक यूनिट कूलम होता है। तो के का जो यूनिट है वो हमारे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फर्दर कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये के डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, कि दोनों चार्जेस के दरमियान में कौन सा मीडियम पड़ा है। आइदर वो एयर है, वो वैक्यूम है, वो कोई प्लास्टिक की शीट है, वो कोई इंसुलेटर है और वो कोई कंडक्टर है। एंड द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हम लोग किन यूनिट्स में के की वैल्यू को मेजर कर रहे हैं। इन ऐसा यूनिट द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फर्दर the representation of k in free space, let's say two charges q1 and q2 and the medium between them is a vacuum. So the k vacuum is equal to 1 over 4 pi epsilon naught. This symbol is read as epsilon naught and it is known as the permittivity of free space and its value is 8.85 into 10 की power minus 12 coulomb square per newton per meter square, because here the unit of permittivity of free space is opposite to the unit of k, that is newton meter square per coulomb square. It is opposite to the epsilon naught. अब क्वेश्चन आता है कि ये जो परमिटिविटी है ये परमिटिविटी क्या होती है। परमिटिविटी बेसिकली परमिशन का रेसिप्रोकल है हमारे इस टॉपिक के अंदर। मींस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोल रहे हैं कि एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो ये जो के है हमारे पास, इस के की वैल्यू कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। और अगर हमारे पास के की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर था। के डिक्रीज होगा तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। फर्दर इन सब की वैल्यूज हम लोग जब के फॉर्मूला में पुट करते हैं तो के इज इक्वल टू आ जाता है 1 ओवर 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। आफ्टर सॉल्विंग इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, which is the value of k in SI units. By substituting the value of k in the formula of Coulomb force, that is F is equal to k Q1 Q2 divided by R square,
the formula becomes F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square. It represents the force in vacuum or in free space when there is a no medium between the charges. As force is a vector quantity, so vector representation of force is F vector is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square, and unit vector R unit vector represents the direction of force, and this is the vector form of Coulomb's law in free space or Coulomb force in free space. रिप्रेजेंटेशन ऑफ के व्हेन द मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन टू चार्जेस। अब हम एक ऐसी कंडीशन को अज्यूम करने लगे हैं जिसमें दो चार्जेस लाइक Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, इनके दरमियान में कोई भी एक मीडियम मौजूद है। अगर हम लोग चार्जेस के दरमियान में मीडियम रख देंगे तो डेफिनेटली जो फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी, और वो कितनी रिड्यूस होगी उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। इसे समझने के लिए हम लोग के का फॉर्मूला लिख लेते हैं। के इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। अब एप्सिलॉन मीडियम क्या है इसे समझने के लिए लेट्स से हमारे पास एक बॉल है जिसकी प्राइस 50 रुपीज और एक और बड़ी बॉल है जिसकी प्राइस 150 रुपीज है। अगर हम लोग देखें दोनों बॉल्स की प्राइस को आपस में कंपेयर करें तो हम लोग कह सकते हैं कि जो छोटी बॉल की प्राइस है वो बड़ी बॉल की निस्बत 3 गुना कम है, या मैं यूं कह सकता हूँ जो बड़ी बॉल की प्राइस है वो छोटी बॉल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है। मीन्स जो 50 रुपीज है छोटी बॉल के वो तो फिक्स है, सिर्फ उसे मल्टीप्लाई करवाएगा किसी एक फैक्टर से, बिकॉज हम लोगों ने बॉल के साइज को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। सिमिलरली अगर मैं एप्सिलॉन मीडियम को डिफाइन करूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट is the permittivity of free space and epsilon r is known as relative permittivity. So the formula of K becomes K medium is equal to 1 over 4 pi epsilon naught epsilon R, and epsilon R is known as relative permittivity, and for vacuum its value is equal to 1, for air its value is equal to 1.0006, for insulated its value is greater than 1, and for conductor its value is infinite। और ये वैल्यूज हमसे एमसीक्यूज में बोर्ड के पेपर्स में पूछी जा सकती हैं। इन वैल्यूज में एक कॉमन चीज चेक करें, ये सारी की सारी वैल्यूज 1 से ग्रेटर हैं, मींस रिलेटिव परमिटिविटी कैन नेवर बी लेस देन 1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नेवर बी लेस देन 1, ये 1 से कम कभी भी नहीं हो सकती। सो the force medium is equal to 1 over 4 pi epsilon naught epsilon r into q1 q2 divided by r square. It represents the formula of Coulomb force when the medium is present between the two charges. And if we common the factor 1 over 4 pi epsilon naught from this formula, it becomes 1 over epsilon naught 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, which is the formula of force in vacuum. So F medium is equal to F vacuum divided by epsilon R. When we separate the relative permittivity or epsilon R from this formula, it is equal to F vacuum over F medium. तो यहाँ पर हमारे पास बोर्ड में एक important short question पूछा जाता है कि define relative permittivity, and it can be defined as the ratio of force between two charges placed in air or vacuum to the force when insulating medium present between the charges. And as it is the ratio between two similar quantities, so it have no units. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में बोर्ड के पेपर में इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है। Now, vector form of Coulomb's law, as Coulomb force is a vector quantity. So let's say we have two charges Q1 and Q2, and Q1 exerts a force on Q2 that is represented by F21. It shows that the force acting on charge Q2 by charge Q1. So F21 is equal to force on charge Q2 by Q1, and
R21 is the unit vector that represents the direction of force of charge Q1 on Q2. Similarly, as the Coulomb force is a mutual force, so there is always an opposite force exists that is acting on charge Q1 by Q2, and it is represented as follows. And the formula of force F21 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into unit vector R21, and F12 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R square into R12. From the symmetry, it is clear that R12 and R21 are in opposite direction. So we can write R21 is equal to minus R12. So in the formula of force F21, which is the force acting on charge Q2 by Q1, it is equal to F21 is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और जहां पर हमारे पास उस फॉर्मूला के अंदर R21 लिखा हुआ था उसकी जगह मैंने R12 पुट कर दिया। अगर यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लें तो जो ब्रैकेट में हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचती है वो अगेन F12 के ही इक्वल है। So we say that both the forces are equal in magnitude but opposite in direction. Further, here there are some limitations of Coulomb's law. Coulomb's law is only valid for point charges. What are the point charges? Point charges are the charges whose size is very small as compared to the distance between them. Second point is charges must be static because it is an electrostatic force between the two charges. So the charges must be at rest. Point number three, charges must be far enough so that the strong nuclear force do not dominate over कूलम्स फोर्स के चार्जेस के दरमियान में इतना फासला लाजमी होना चाहिए कि वहां पर कहीं न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट ना कर जाए और कूलम फोर्स को इग्नोर ना करना पड़ जाए। Here is some important note. The sign of charges determine whether the force is attractive or repulsive. हम लोग फोर्स के साथ आने वाले साइन को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स एग्जिस्ट करती है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है। जैसा कि हमें पता है कि कूलम फोर्स का फॉर्मूला 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर मेरे पास दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव होने की वजह से मेरे पास जो फोर्स आएगी उसका आंसर भी पॉजिटिव भी आ रहा होगा बिकॉज पॉजिटिव 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 के इक्वल होता है। देन द फोर्स इज रिपल्सिव बिकॉज सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। सिमिलरली अगर मेरे पास दोनों चार्जेस ऑपोजिट पोलैरिटी के हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो ये शो कर रहा होगा कि जो फोर्स है कूलम फोर्स वो अट्रैक्टिव है। नाउ हियर इज अ स्मॉल क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, if the magnitude of charges becomes double then coulomb force becomes। अगर दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डबल कर दिया जाए तो कूलम फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है कूलम फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अगर दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल करना है तो मुझे Q1 की जगह भी 2Q1 पुट करना पड़ेगा और Q2 की जगह भी 2Q2 पुट करना पड़ेगा। जब दोनों को पुट करेंगे तो 2 टू द 4 हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो टर्म बचेगी वो बच जाएगी F इज इक्वल टू 4K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर होगा द फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स। MCQ number 2. The value of relative permittivity for all the dielectric other than air or vacuum is always dash unity। तो टॉपिक के अंदर जैसे भी हमने बात की थी कि रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, वो 1 से कभी भी लेस नहीं हो सकती, और 1 के इक्वल सिर्फ वैक्यूम के लिए और किसी भी मटेरियल के लिए नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इक्वल टू 1 वो सिर्फ वैक्यूम के लिए है, ऑप्शन नंबर डी 2 टाइम्स। सो द राइट आंसर इज ग्रेटर देन यूनिटी।